إمام المرسلين والمتقين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اساتذہ کرام، میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، آج کا یہ دن تعلیم کا دن نہیں بلکہ صرف ہم نے اپنی زندگی تعلیمی سرگرمیوں کو روک کر کے اس دن کی یادگار کے طور پر یہاں جمع ہونا ضروری سمجھا، ورنہ اگر یہ جمع ہونا ضروری نہ ہوتا، یہ اس دن کی اہمیت نہ ہوتی کسی بنا پر، تو ہم قرآن و حدیث کی تعلیم کو چھوڑ کر کے یہاں جلسہ نہ کرتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے تو ذہن میں یہ رہنا چاہیے، یہ تعلیم کا دن ہے، یہ سب کی حاضری کا دن ہے، سب لوگوں کو اور تمام طلبا کو بھی حاضر رہنا ضروری ہے۔ اور یہ مجمع، یہ اجتماع، یہ جلسہ کسی حال میں بھی اس عظیم بنیادی کام کی قائم و خانی نہیں کر سکتا جو آپ جن کاموں میں اور جن اہم امور کو انجام دینے میں مشغول ہیں۔ یہ محض ایک یادگار کے طور پر اپنے تمام ذمہ داریوں کو چھوڑ کر کے ہم جمع ہوئے ہیں۔ ملک کو آزاد ہوئے 72 سال ہو گئے، یہ 72واں سال ہے۔ اس زمانے میں ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا، اس کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ آپ نے انگریزوں کو یہاں سے نکالنے کے بعد جو ان کے خلاف جنگ لڑی تھی، اس جنگ کے نتیجے میں آپ کو یہ آزادی ملی۔ اس آزادی میں اس ملک کا ہر فرد آزادی کے حاصل کرنے میں ملک کا ہر فرد شریک ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ کچھ ہی ایسے لوگ ہیں جو اس آزادی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور بقیہ دوسرے لوگوں کو اس سے مستفید ہونے کا کوئی حق نہیں ہے، یہ ایک بہت غلط خیال ہے۔ بلکہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کو اس آزادی سے فائدہ حاصل کرنا ہے، وہی دراصل اس جنگ آزادی کے مخالف ہیں۔ اور جن لوگوں نے اپنی ساری توانائیاں، بلکہ اجازت دیجیے تو یہ کروں کہ اپنی جانیں دی، جن لوگوں نے اس راستے میں صرف کر دی، ان کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ ان کا کوئی حصہ نہیں ہے اس ملک سے مستفید ہونے، اس ملک کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں رکھی ہیں، جو خزانے رکھے ہیں، جو ہر چیز کی انسانی خدمت کے سلسلے کے اندر جو اسباب و وسائل میں موجود ہیں، اس سے صرف وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن کا کوئی حصہ نہیں ہے اس جنگ آزادی کے اندر۔ میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ کا یہاں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اس کو بہت ایک اہم فریضہ بھی سمجھتے ہیں کہ جنگ آزادی یعنی ایسے لوگوں کے ہاتھ سے ملک کو آزاد کرانا جن کا کوئی حق نہیں تھا یہاں، اور جن کے یہاں ایک چند لمحے نہیں رہنے کی کوئی جواب نہیں تھا، وہ ایسے دنوں تک وہ 200 سال سے زیادہ تک یہاں موجود رہے اور ہماری کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ ان کمزوریوں کو دور کرنے اور عوام اور ملک کو طاقتور بنانے میں جس ضرور نے اور امت کے جن لوگوں نے اور اس ملک کے جن بازوں نے حصہ لیا وہ کسی سے مخفی نہیں،
मगर जिन लोगों ने इसमें कोई हिस्सा नहीं लिया था, जिन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, जो लोग उनके बदोश थे, जो इस जंग आज़ादी के मुखालिफ थे, वो आज इससे पूरी तरह मुस्तफीद होने की और इसकी तमाम खूबियों को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। आप इंसाफ के तराजू में रख करके आप देखें उन कोशिशों को जो उलमाए किराम ने सर्व की और मुस्लिम लीडरों ने सर्व की, इस मुल्क के और दीगर हमारे हम वतनों ने जो सर्व की, उनके लीडरों ने जो सर्व की, और जो सब हम शेर व शक्र होकर के एक दूसरे के साथ मिल करके मोहब्बत और एतमाद के निज़ाम में उन्होंने इस काम को अंजाम दिया था, वो लोग और उनके मानने वालों को आज वो फायदा नहीं पहुँच रहा है जो फायदा उनके मंजूर था। मैं आप सब प्रकार से ये अर्ज करूँगा कि आप हमेशा इस बात को पेश नज़र रखते हुए इस मुल्क की खिदमत के लिए और इस मुल्क की खिदमत करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनको इख्तियार करें। तालीम एक बहुत अहम उन्सुर है। तालीम के बगैर आप कोई भी तरक्की नहीं कर सकते, न इक़्तिसादी तरक्की हो सकती और न इज्तिमाई तरक्की हो सकती, न सियासी तरक्की हो सकती, न इक़्तिसादी तरक्की हो सकती, किसी चीज़ की कोई तरक्की बगैर तालीम नहीं हो सकती। इस मुल्क के अंदर जो हमारे मदारिस इस्लामिया हैं और वो जिस कुर्बानी के जज्बे के साथ काम कर रहे हैं और जिस तरह से बगैर किसी नफरत की उम्मीद रखते हुए अपनी जानों और औरतों को मसद कर रहे हैं, उन्हीं से उम्मीद की जा सकती है तो इस मुल्क के वकार को और उसकी इज्जत को और उसकी अजमत को और उसकी खैर बरकत को कायम रखेंगे। हम सब को इस बात का फरीदा होता है कि हम इस मुल्क की खिदमत के लिए तालीम के जरिए से कुरान सुन्नत के किताब सुन्नत के अंदर जो हमको जो बुनियादें बताई गई, जो उसूल हमको बताए गए हैं, उन उसूल पर अमल करके ही हम ये काम अंजाम दे सकते हैं। हम दावत रज़ा का काम बगैर इस तालीम के नहीं दे सकते। हम किसी तरह लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने के लिए बगैर तालीम का कोई काम नहीं कर सकते। इसलिए आप सब हकीकत को हमेशा पेश नज़र रखें। खासतौर से मैंने अपने के तलवार को ये कहूँगा तो इस हकीकत को पेश नज़र रखें कि आप किताब और सुन्नत की तालीम हासिल करने के बाद आप इस मुल्क की मिल्लत की और इस मुल्क के जितने बाशिंदे हैं और इंसानों की सबकी खिदमत आप करेंगे और इंसानियत का बोलबाला आपके ज़रिए से होगा। इस वक्त जो हालात पेश आ रहे हैं इसमें इंसानों को बहुत हकीर चीज़ समझ करके उनको इस साथ मामला किया जा रहा है। या एक इंसान दूसरे इंसान के को एक गिरी पड़ी चीज़ से गुजारे को अपना समझता है। इस एहसास को और इस कमी को दूर करने के लिए हमारी ज़रूरी है कि हम किताब सुन्नत के उसूलों के ऊपर अपने आप को पूरी तरह से उस पर अमल करने के लिए अपने आप को तैयार करें और इसी तैयारी के नतीजे में हम इस आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को आज़ाद करके जो चाहे करें, बल्कि आज़ादी का मतलब ये था कि हमने एक दुश्मन कौम ने एक वक्त के लगते पंजे से हमने इस मुल्क को आज़ाद कराया जो हमारी इस मुल्क की तमाम खूबियों को, इस मुल्क की तमाम बरकतों को, इस मुल्क की तमाम खैर व बरकत को वो लूट रहा था और इंसानों को महरूम कर रहा था ताकि रहने वालों को जो असल के हकदार थे वो उससे महरूम थे। इसलिए हम इंसाफ के साथ जो चीज़ होगी पूरी इंसानियत की खिदमत करने के लिए अपने आप को तैयार करें। हमारे मदारिस इस्लामिया इसी बात की इसी बुनियाद के ऊपर कायम है तो पूरी इंसानियत की खिदमत करने के लिए तो इंसान को उस सही रास्ते तरफ बढ़ाने के लिए वो अपना वक्त लगा रहे हैं जो सही रास्ता इंसानों को पैदा करने वाले ने हमको बताया है और उन्होंने सही इंसानों के पैदा करने के साथ साथ वो सही रास्ता भी पैदा करके हमको दिखा दिया है और फरमान दिया है अल्लाह ने वरना हाज़ा सिरात मुस्तक़ीमन फत्तबिऊहु वला तत्तबिउ सुबुल फतफ़रक़ बिकुम अन सबीलिही ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्क़ून। भाइयों, मुझे आपसे ये बात नियत करनी है, मैं अपने उलमाए किराम से और सादे किराम से नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने हदीस तलबा से बात कर रहा हूँ। अपने आप को तैयार करें
इस मुल्क को आप एक नमूने का मुल्क बनाएंगे। हर एतबार से जिंदगी के जितने गोशे हैं उन तमाम गोशों को ज़्यादा से ज़्यादा रोशन करने के लिए आप अपनी जिद्दोजहद को इसमें सर्व करेंगे और इरादा करके आप जो तालीमी फ़ायदा उठा रहे हैं उस तालीमी फ़ायदे को आप महदूद न करें, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा आम करने की कोशिश करें और इसे पूरी दुनिया के अंदर दावत अल्लाह का, अल्लाह के रास्ते के लोगों को बनाने का, अल्लाह तबारक तआला से लोगों को जोड़ने का काम आप अंजाम दें। ये सबसे बड़ा हमारा पैगाम है और इसी पैगाम के मादर हमारी मदद से कायम है। आज हम क्योंकि वो हम याद कर रहे हैं इसी दिन अंग्रेज जैसे दुश्मन हैं, दुश्मन इस्लाम ने, अंग्रेज जैसे दुश्मनान इंसानियत ने आज इस मुल्क को छोड़ा था और हमने उसकी खुशी मनाई थी। वो खुशी ऐसी है जो हमेशा साथ मनाई जाती रहेगी और हम आगे जदीद करते रहेंगे कि हमको इस मुल्क की खिदमत करना है। मुल्क के अंदर जो कुछ भी इस मुल्क की मिट्टी की खिदमत करना, इस मुल्क के इंसानों की खिदमत करना, इस मुल्क के अंदर जैसे इसके अंदर जो इसके अंदर जो चीज़ें पैदा की हैं उनकी खिदमत करना और उनको आगे बढ़ाना और ज़्यादा मुस्तफ़ीद होना, ये हमारे लिए ज़रूरी है। हम इसी बुनियाद के ऊपर हम इस दिन को एक अच्छे दिन के तौर पर मना रहे हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियों को जो तालीम और तदरीस की जिम्मेदारियाँ थी उन जिम्मेदारियों को छोड़ करके आज यहाँ जमा होकर के हम एक दोबारा अहद कर रहे हैं कि हम जिस काम के लिए अल्लाह ने हमको आज़ादी फरमाई थी उस आज़ादी को हम सही तरीके से और सही मसरफ में इस्तेमाल करेंगे और जो लोग उससे गलत फ़ायदा उठा रहे हैं उनको समझाने की कोशिश करेंगे और उसको रोकेंगे।